स्टार्ट करूं? ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। अध्यात्म के अमर हस्ताक्षर को मेरा श्रद्धा शत नमन। ज्योति पुंज गुरुदेव के चरणों में भावभीनी वंदना। अंत विराजित निर्देशिका जी और हमारे श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत बर्मिंघम का जैन आश्रम समाज। Be ready for Priksha meditation. Now select a comfortable posture for your body from the following: full lotus posture, half lotus posture, diamond posture, a simple cross-legged posture. And select any one of the mudras of your hands. Jnana mudra ya Vitarag mudra. Position of knowledge. Keep your left hand on your left knee and your right hand on your right knee. Keeping the palms turned up, let the tip of the index finger touch the tip of the thumb with slight pressure. Position of omniscience. Keep your left hand in the central part of your lap and put your right hand on the top of the left hand. Both palms should be facing up. Close your eyes softly with your spine and neck in a straight line. We start the meditation session with the recitation of Om sound. Inhale fully and then exhale deeply as long as you can. Exhaling slowly, produce the sound. Om. Concentrate your mind on the center of the head, situated at the top of the head, and keep the mouth closed, tongue hanging freely inside the mouth. Try to feel peaceful vibration taking place inside your head. Try to feel peace, inner peace.
Focus your mind in the middle part of your forehead. Penetrate your mind inside the center and visualize a bright white color, like the full moon. Full moon is shining on your forehead. The radiation of bright white color are pervading throughout your forehead. Your forehead is illuminated with bright white particles. If color does not appear, do not be disappointed. Use deeper and deeper concentration. Now focus your mind on the center of enlightenment and suggest to yourself that my anger is going away. All my emotions and passions are being pacified. Repeat it again and again. Contemplate on this sentence. Let them reach your subconscious level. Once it reaches the subconscious, there will be transformation of your hormones. Make a resolution. I will control my anger. Mentally repeat. My tolerance power is improving. Determine to yourself, I will keep myself cool and calm in each and every situation. Because I am peaceful soul, positive soul, powerful soul, and forgiveness soul. I am peace. Try to feel inner peace. Search for the truth yourself and have amity with all living beings. For emancipation from suffering, practice knowledge and conduct. Now we are coming back from meditation session. Take 2 long breaths. Inhale, hold, exhale and hold. If you are inhaling for 5 seconds, hold for 5 seconds. Exhale for 5 seconds, hold for 5 seconds. You can recite with Om. Try to read Om. Rub your palm and charge your face. ओम अर्हम प्रयोग संपन्न। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और हमारे प्रतिक्रमण का भी टाइम अब यही है। तो अर्चना जी एक काम कीजिए, अब क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा आप कराइए। तब तक हमने थोड़ा किया है 24 तो, और बाकी का प्रतिक्रमण हम थोड़ा बाकी वो अभी कर रहे हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन आंसर 10 मिनट करा दीजिए, तब तक हम पूरा कर लेंगे। बदनामी आपके बिना करा। हाँ कराइए, कुछ होगा तो मैं लास्ट में कर लूंगी। मैं मतलब वैसे मैं आंख नहीं खोलती हूँ प्रतिक्रमण में, बट मैं देख लूंगी। ठीक है,
आप कितनी देर में आएंगे फिर वंदना? नहीं नहीं, मैं यही हूँ, जाऊंगी कहीं नहीं, बस। अच्छा, ओके। So ये वंदामी का बनाया हुआ क्विज है, फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस में। तो इसमें अरविंदर जी, अगर आप नाम बुलाना चाहेंगे एट द सेम टाइम एक एक क्वेश्चन के लिए तो इजी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जिसने वंदामी के लेक्चर्स सुने हैं और जो अटेंशन पे कर रहे हैं उनके लिए है, और दूसरे भी सब ट्राई कर सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क के सारे केंद्र कहाँ हैं? एक सेकंड, ये पहला नहीं है, एक सेकंड, ये वाला हिडन। फर्स्ट क्वेश्चन, हिरणी अपने शिशु की रक्षा करने के लिए सिंह का सामना क्यों करती है? अरविंदर जी, आप नाम बुलाएंगे कि किसका क्वेश्चन है? Why does the deer confront the lion to protect her child? इसमें ऑप्शंस हैं, प्रीतिवश, लविंगली, अप्रीतिवश, विदाउट लव, क्रोधवश, एंग्रीली, या भयवश, fearfully। इसमें कौन आंसर कर रहा है? अरविंद जी, कामनी आंसर कर रही है इसका। हाँ, चांदनी जी। कामनी, शायद कामनी बहन को बोला है मनीष जी ने। चलो ठीक है, बताइए। लविंगली, प्रीतिवश। बहुत अच्छा। ओ मरहम, थैंक यू कामनी जी। सेकंड क्वेश्चन, ये चांदनी जी के लिए है। ओके। चांदनी जी, मानतुंग आचार्य अक्षम होते हुए भी स्तुति करने के लिए तैयार क्यों हुए? Why did मानतुंग आचार्य become ready to praise Lord Rishabh even if incompetent to do so? इसके ऑप्शंस हैं, बेटे को मैसेज है, कांट म्यूट, अनम्यूट, कैन वी डू दैट? हाँ आप कर सकते हैं। वो राइट हैंड पार्टिसिपेंट्स में मोर नहीं, वो रश्मि जी का मैसेज था। ओ, तो मैं साथ साथ नहीं कर पाऊंगी इसलिए आपको बोला था। या नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ आप कर सकते हैं, आपको होस्ट है ना मनीष जी, अच्छा कर ठीक, सकते हैं आप। चलो ठीक 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 ठीक, ओके। डिवाउटनेस, शक्तिवश ड्यू टू पावर, प्रीतिवश ड्यू टू लव, या अनुरक्तिवश ड्यू टू obliging नेचर। सो मैं एक बार चेक कर रही हूँ जस्ट इन केस। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ हाँ Yes. ठीक है, हाँ ठीक। Yes. I think it's devoutness. Very good. Okay. Just seeing if I gone back. Yeah. Yes, you're right, Chandni ji. Omaram. Next question. नेक्स्ट वन फॉर रेनू, ये Renu? भी Okay. रेनू चरणों जी भी। चरणों की 3 विशेषताओं में से क्या है, क्या नहीं है? Which is not one of the 3 characteristics of feet? आलंबन देने वाले हैं, उद्योत करने वाले हैं as promoter, अपमान करने वाले हैं as insulter, या पाप का नाश करने वाले हैं as destroying of sin? So क्या इसमें से विशेषता नहीं है पैरों की, चरणों की? I'm having difficulty to unmute, बेटे। Manish ji, could you do I that? can't unmute anybody.
I'm not sure. It's destroying पाप का नाश करने वाले. Okay. Yes, I believe that's the right answer. Oh, is it? Thank you. Yes, it is. So, yes, that is the right answer. Thank you, Reniji. Well done. Thank you. Okay, next question is for For Rajesh. Rajesh ji. What is the mantra to root out quarrel? झगड़े की जड़ को उखाड़ने का मंत्र क्या है? Negative thinking, collective thinking, positive thinking, or none of the above? Collective thinking. Okay, Vandami will, I would have thought Positive thinking. positive Yeah, thinking. positive thinking. Yeah, for everything. But I think for clearing the any jhagda, I think collective is better. Okay, because this इसमें वो नहीं था, so Okay. we'll, Okay, positive is okay. But no. If collective is right, then collective is right. ऐसी कोई बात नहीं है. So we'll check on that answer. I'm sorry, I'm not sure about the answer on that. okay. If if anybody has any other insight, please say while Vandami is coming back. Okay, next question. I can't unmute Chandani still. Oh, okay. I'm okay. Now she has. Now Chandani is the next question, please. Chandni ji has already answered. Okay. Okay. Okay, that guy Rashmi ji. Okay. बाधाओं को हटाने का सबसे बड़ा आलंबन क्या है? What is the biggest source to remove obstacles? And our options are stotra, bhakti, bhavna, या सभी. Devotion. I think sabhi. I'm not sure. Yes, I believe that's true as well. Oh God, we've gone back. So that's why I wasn't sure about these. So can we remember our questions where we have, but I think stotra में devotion भी है, bhakti में और bhavna भी है. So all of these would be the right answer. Thank you. ये किसका क्वेश्चन है? ये संतोष जी का है. संतोष जी. पैरों का मिट्टी के साथ सीधा संपर्क होने से कौन सी समस्या सुलझती है? What problems does direct contact of the foot with the soil solve? आदतें, भावनाएं, मन की प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स. तो क्या सॉल्व करती है हमें जब हम पैरों को धरती से के कांटेक्ट में रखते हैं, तो हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं? हैबिट्स, इंटेंशन, माइंड प्रॉब्लम्स और हेल्थ ऑफ द माइंड. हेल्थ की हो सकती होगी, मेरे को मैंने सुना नहीं, पहली बार लगा रही हूँ. स्वास्थ्य की. Yes, I believe that's the right answer. Omaram. See, it's may problem. Yes, it is the right answer. It flashed. Did everyone see? Thank you. ये देखिए, ये पीला रंग आ रहा है. सही है, Omaram. Thank you. So, ये question किसका है? Next one, Shivani. शिवानी जी. आत्मा की खोज कब शुरू होती है? When does the soul searching begin? जब मैं और मेरा घेरा कम होता है, I and my circle starts to get reduced. मैं और मेरा घेरा ज्यादा होने से soul searching होती है, आत्मा की खोज होती है, या दोनों में से कोई भी नहीं. I think it's the first one. मैं और मेरा घेरा कम होने से. I believe that's also the right answer.
Yes, Omarham. Thank you. Next question, Sudha ji. What is the mirror of the soul's downfall? आत्मा के पतन का आईना क्या है? कोई बता सकता है कि लाभ है, लोभ है, या इन दोनों में से कोई नहीं, कुछ और ही है? सॉरी, सुधा जी का क्वेश्चन है, तो सुधा जी आंसर करेंगे. सुधा जी अनम्यूट करो. तो आत्मा के पतन का आईना क्या है? लाभ है, लोभ है, या कोई भी नहीं है, या कुछ और ही है? लोभ. ओके, ये किसने किया, किसने जवाब दिया जी? लोभ. हाँ, किसने? सुधा. हाँ, थैंक यू सुधा जी. ओके, आर यू श्योर सुधा जी? जी. ओके, एनीबडी, किसी और को कोई आंसर देना चाहेगा? एनीबडी एल्स? Would they agree? Yeah. Okay. So आत्मा के पतन का आईना क्या है? So the answer is ignorance. वहाँ था ही नहीं. It wasn't there. अज्ञान. The question was कि इन तीनों में से है, दोनों में से है, या कोई भी नहीं है, या कुछ और ही है? So वो कुछ और ही था, वो था अज्ञान. अज्ञान के कारण आत्मा का पतन होता है, और वही हमारा पतन का आईना भी है. थैंक यू सुधा जी फॉर ट्राइंग. स्वेनी और भारती बहन. ओके. कौन सी कथा सदा शाश्वत साथ रहती है? Which story? कौन सी कथा सदा शाश्वत साथ रखती है? अच्छा, धर्म कथा. Number 2. Sweni ji, absolutely Yeah. right. Yes. Yeah. Thank you. Oh my God. तो सब लोग अच्छे से क्विज समझ रहे हैं और लेक्चर सुन रहे हैं. So Om Haram to everyone. अभी पहला क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे थे बनीता जी से. हो गया? हाँ, हो गया. थैंक यू. एकदम टाइम I think ये लास्ट क्वेश्चन है वंदामी, मेरे ख्याल से है. ये लास्ट है ये वाला. You can ask. बनीता जी से. ओके. हाँ जी. मस्तिष्क के सारे केंद्र कहाँ हैं? Where are all the centers of the brain? हाथ में, शरीर में, मुंह में, या पाँव में? हाथ में. हाथ. नंबर 1 आई थिंक. ओके, और कोई आंसर करना चाहेगा? या अरविंद भाई एक आंसर आप भी करिए. शरीर में या हाथ में? विनीता जी आपने सारे बता दिया, एक तो होगा ना फिर. 2 ही तो बताए बंदा में, 2 बताए. दोनों ही नहीं है. दोनों नहीं है. दोनों नहीं है. पाँव में होगा. यस, अरविंद भाई राइट. इतना एक सवाल श्योर नहीं था, वो समझ से पूछ ले. पॉजिटिव होगा वो, अल्टीमेट वाला नहीं पॉजिटिव होगा. मेरा थोड़ा सा ध्यान चला गया. अच्छा, पाँव में है क्या बंदा में? पाँव में पूरे शरीर के सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स. जब आप रिफ्लेक्सोलॉजी जाके देखोगे नेट पे, तो आपको पूरे के पूरे शरीर के सारी बॉडी की प्रॉब्लम के पॉइंट्स, हमारे पाँव में कम से कम 500 बीमारियों से ज्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. इसीलिए इसका साइंटिफिक वे में क्या हो सकता है कि जैसे प्राचीन जमाने में साधु संत 25 किलोमीटर चलते थे. पहले तो पदत्राण, जूते कुछ भी यूज नहीं करते थे, और आराम से चलते थे, और पूरी लॉन्ग लाइफ उनकी अच्छे से चलती थी. तो कारण क्या था कि सीधा जमीन से हमारे पांव स्पर्श होते हैं, तो उसे सत्वम गुण आया थी. सीधा जमीन से मिट्टी के साथ पांव स्पर्श होते तो हमारी बॉडी की हीट लेता है पूरी की पूरी मिट्टी, और दूसरा पूरे के पूरे पांव के सारे पॉइंट्स दब जाते हैं. तो जिससे साधु संत एकदम, मतलब आपने कालूगणी तक तो सुना था कि उन्होंने अपनी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराया था. उसके कारण हालांकि उनको डेवलप भी हुए, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया. प्राचीन जमाने में साधु साध्वी दवाई तो, ऑपरेशन तो बहुत दूर, दवाई भी नहीं लेते थे.
तो ये सब था कि वो पैदल चलते थे। सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारे पांवों के पॉइंट्स में है। तो अगर रेगुलर, पहले जमाने में लोग गोबर को खूंदते थे पांव से, तो हमने तक भी खूंदा हुआ, आपने पता नहीं किया कि नहीं। पहले वो मिट्टी के आंगने होते थे गोबर के, तो उसमें जाते थे एक दूसरे के घरों में, तो उससे हम करते थे। तो उससे हमारी बॉडी की पूरी नेगेटिविटी खींच लेता था, क्योंकि गोबर में जो खाद होती है वो खाद हमारी बॉडी की पूरी हीट खींच लेती थी। सबका काम आता है विसर्जन, मनुष्य को छोड़ के। नंदानी, ये वाले क्वेश्चन का बता दीजिए उनका। आई थिंक कलेक्टिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें झगड़े की जड़ को है ना सामूहिक सोच नहीं रखना है। वहां पे आपकी पॉजिटिव में सब कुछ इंक्लूड है। अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो चाहे समूह में हो, चाहे सिंगल वे में हो, चाहे हमारा सोशल ग्रुप में हो, चाहे फैमिली में हो, अगर पॉजिटिव थॉट्स होगा तो वो सब कुछ सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला होगा। सामूहिक सोच में भी अगर आपकी नेगेटिव सोच है तो उसमें एक व्यक्ति का हित हो सकता है, बाकी का हित हो सकता है। अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव में कलेक्टिव आ ही जाता है। हाँ, पॉजिटिव में कलेक्टिव इंक्लूड है। वेरी नाइस। आई थिंक ये लास्ट ही था। अच्छे दिए सबने क्वेश्चन, थैंक यू। बहुत क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। ये अच्छे तो नहीं, अभी मैंने बहुत टाइम, मतलब शॉर्ट था और मुझे दूसरे बहुत सारे काम थे तो नहीं कर पाई अच्छे से। तो मैंने सही नहीं कर पाई, आपने किया उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। ये चेक भी आपके भरोसे छोड़ा मैंने। चलो अब एक 6 श्लोक करते हैं हम। 10 मिनट नहीं, सिर्फ 10 मिनट भाव रखते हैं और उसके बाद में हम दूसरा और कुछ करेंगे। थोड़ा सा इसमें भी 1-2 क्वेश्चन करूंगी मैं। वंदना में आप बोल रहे थे के लिए सबको उच्चारण कराने के लिए बोल रहे थे। हाँ, उच्चारण बस लास्ट के, अभी अपने पास 35 हुए लगभग, तो मैं 45 तक मैं करती हूँ और फिर 15 मिनट्स में अपन ब्रेकआउट, जैसे विनीता जी आए हुए तो सबका उपयोग भी हो जाएगा। चांदनी जी है तो इनको शुद्ध कराए हुए, तो एक एक सबको दे देंगे, तो ब्रेकआउट रूम में ये सब एक एक को शुद्ध करवा देंगे। तो 15 मिनट्स में 5 श्लोक इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार 15 मिनट होते ही मेरे को थोड़ा सा हिंट्स कर देना। जी वंदना। स्लाइड शेयर हो रही है जी। गहरी नींद में कौन सा हार्मोन हमारे ब्रेन में बनता है, यानी वो ब्रेन से आउट होता है तभी हम गहरी नींद में जाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, आप अभी एक ही चीज समझिए, गहरी नींद में कौन सा हार्मोन हमारे ब्रेन में बनता है? सेरोटोनिन। वेरी नाइस, राइट आंसर विनीता। सेरोटोनिन नाम का हार्मोन। और ये हार्मोन हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? पीसफुल बना देता है, रिलैक्स। और इसके कारण हमारा पूरा का पूरा ब्रेन एकदम शांति की अनुभूति करता है, और इसी को हम अमृत का स्राव कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो कौन सा हार्मोन हमारे ब्रेन में सिक्रेट होता है, कोई बता सकते हैं? मॉर्निंग में मेलाटोनिन। नो, मेलाटोनिन। विनीता ने 1 मिनट क्या बताया? सेरोटोनिन बताया जी। हाँ, तो आपने रॉन्ग बता दिया, ऑपोजिट आंसर हो गया। मेलाटोनिन। गहरी नींद में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है हमारी ब्रेन में। अच्छा। अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी, कंप्यूटर कुछ भी चालू रखते हैं तो आपके माइंड में बहुत डिस्टर्ब होता है। यानी उस समय उसकी जो रेज होती हैं वो टाइप ऑफ लाइट का इफेक्ट डालती है आपके ब्रेन में, और जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन आपके ब्रेन में बनना चाहिए वो नहीं बनता है। इसीलिए आपको गहरी नींद आने के बाद में भी फ्रेशनेस नहीं लगता है। और सुबह उठते ही हमारे ब्रेन में, अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले अगर हम उठते हैं तो हमारे ब्रेन में कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, राइट विनीता, एकदम सही। तो अर्ली मॉर्निंग के लिए सेरोटोनिन और नाइट के लिए मेलाटोनिन। ये क्वेश्चन और रह गया है। कौन सी तंत्रिका पूरे शरीर में फैली हुई है? वेगस तंत्रिका, चेहरे की मतलब फेशियल नर्व, या फिर वेगस नर्व, या सिंपैथेटिक नर्व, या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व? सिंपैथेटिक। स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक किसको कहते हैं? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक? इडा पिंगला। विनीता अच्छे शब्द पूरे सही पकड़े, इडा और पिंगला। तो वो तो लेफ्ट एंड राइट साइड के इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसका संबंध पूरी बॉडी के साथ नहीं है।
Vegas, Vegas. Vegas. यस, वेगस सही आंसर। ये जो Okay. येलो कलर की आपको नर्व्स दिख रही है, ये आपकी वेगस नर्व है। ये फेशियल नर्व है, वो सिर्फ हमारे फेस में ही जाती है, ठीक है। ये वेगस नर्व है जो पूरी बॉडी में एकदम जाल की तरह फैली हुई है, Okay. ठीक है। इसी का संबंध हमारे स्टमक के साथ है, इसका ही ब्रेन से, और इसका ही पूरी बॉडी के साथ है। चलो अब एक बार स्लो करते हैं, थोड़ा सा आपको साइंटिफिक वे में भी थोड़ा देते रहे ताकि आपको थोड़ा सा उसका भी नॉलेज हो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां Shruvatam parihas धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिका निकरैकहेतु। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम। मैं अल्प श्रुत वाला हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, और श्रुतवताम परिहासधाम। श्रुतवताम का अर्थ होता है विद्वान जनों के लिए, धाम का अर्थ होता है पात्र, यानी विद्वानों के लिए मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मम, कि मैं हूं तो अल्प बुद्धि वाला और विद्वानों का हास्य का पात्र भी बन सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी भक्ति है वो बलान माम यानी मुझे, बलान यानी जबरदस्ती, जैसे बलात्कार होता है तो यानी जबरदस्ती करना, तो वैसे ही यहाँ पे बलान का अर्थ है जबरदस्ती। आपकी जो भक्ति है वो मुझे मुखरी कुरुते अर्थात वाचाल बना रही है, मुझे कुछ कहने के लिए जबरदस्ती फोर्स कर रही है। यत को किलह किल मधु मधुरम विरोती, कैसे मुझे बोलने के लिए आपकी भक्ति है वो मुझे कैसे वाचाल बना रही है। तो एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया, और आचार्य मानतुंग ऐसे लगता है कि प्रकृति के बहुत निकट है, वो हर चीज को भगवान के साथ में प्रकृति की उपमाओं से उपमित कर रहे हैं। तो कभी ऋतुओं के साथ करते हैं, कभी सूर्य चांद के साथ, कभी दीपक के साथ, अलग अलग आएगा। तो इसमें कह रहे हैं बसंत ऋतु का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जो कोयल है वो मधुर बोलती है, उसका जो मधुर बोलने का कारण क्या है? आम्र कलिका अनिकरेक एक हेतु तच्चारु चाम्र, यानी यत कोकिलह, जो कोयल होती है वो मधु मधुरम यानी बसंत ऋतु को मधु बोलते हैं, कि बसंत ऋतु में कोयल है वो मधुर बोलती है। आप सबको पता है जब आम की मंजरियां आती हैं, आम के जो स्मॉल स्मॉल बीज जैसे फ्लावर के अंदर में आते हैं, तो उस मंजरी के कारण एक ही कारण होता है कि कोयल मधुर बोलती है। तो जिस प्रकार आम की मंजरी है वो कोयल के मधुर बोलने का एक मेन रीजन है, उसी प्रकार जो भक्ति है, आपके प्रति जो भक्ति है वो मेरा एकमात्र रीजन है, और वो मुझे जबरदस्ती, आपकी भक्ति है वो मुझे जबरदस्ती कुछ बोलने के लिए प्रतिबंधित कर रही है। अब हम शब्दों के अर्थ देखें। विद्वानों के हंसी के पात्र, मुझे अल्प ज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है। बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर बोलती है, उसमें निश्चय से आम्र कलिका ही एकमात्र उसके मधुर बोलने का हेतु है। स्मरण, इस श्लोक का उच्चारण बुद्धि बढ़ाने के लिए, अब तो साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूफ कर दिया है कि इस श्लोक का बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। और येलो रंग के साथ अगर जिसको थोड़ा बहुत कम नंबर आता है या जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन से रिलेटेड, तो उनके लिए ये श्लोक बेस्ट है, और साइंटिफिक प्रूफ इसका हो रहा है और हो भी चुका है काफी हद तक। तो आप सभी इसको उपयोग कर सकते हैं मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए। ये आपको आम दिख रहे हैं और आम की मंजरियां भी दिख रही हैं, और इसमें कोयल भी बैठी है। जिस प्रकार कोयल मधुर बोलने के लिए मंजरी उसका एकमात्र हेतु होता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति करने के लिए आचार्य मानतुंग का भी एकमात्र हेतु है कि प्रभु के प्रति समर्पण भाव। और इस श्लोक का उच्चारण सरस्वती की आराधना के लिए किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब हम एक एक शब्दों का अर्थ करेंगे। टाइम है अर्चना जी? 5 मिनट वंदना में। 5 मिनट में तो हो जाएगा अर्थ। 1 मिनट।
अल्पश्रुतम यानी अल्पज्ञ विथ लिमिटेड नॉलेज, श्रुतवतम विद्वानों के बीच, अमंग द लर्न परिहास धाम हंसी का पात्र, ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, माम यानी मुझे, मी, त्वद्भक्ति आपकी भक्ति ही, डिवोशन टुवर्ड्स यू बलात् यानी बलपूर्वक, फोर्सफुली, मुखरी कुरुते वाचाल कर रही है, मेक्स मी स्पीक लाइक कोकिलः कोयल कुक्कू, मधु बसंत ऋतु में, इन द स्प्रिंग, यत मधुरम जो मधुर, मेलोडियसली, विरोती यानी कूकती हैं बोलती हैं, सिंग्स, तच्च इसके लिए, फॉर दैट, किल यानी निश्चित ही, विथ सर्टेनली, आम्र आम ऑफ मैंगो, एंड चारु मीन्स सुंदर ब्यूटीफुल, हेतु कारण रीजन, कलिका मंजरी ब्लोसमिंग, निकरह समूह शॉर्ट्स एक मात्र, द ओनली। तो हम अपना समय हो गया है, इसके साथ हम अपनी बात को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते बेटे। थैंक यू अरविंद भाई। और हमारे इसके